स्वतंत्रता का क्या महत्व है, एकता का क्या महत्व है, ये सब आप सभी को समझाएंगे। योगी गैंग इसमें क्या करता है, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ग्राफिक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा एचआर का काम कर रहे हैं, तो हम यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया योगी गैंग के मंच पर हम बुलाते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिसमें अद्भुत आत्मविश्वास है, भरपूर प्रतिभा है और एक अद्भुत अंदाज है, और कि आज नहीं तो कल वो अपना नाम, अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। योगी गैंग यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया इसी प्रकार अपने कार्य में सफलता की कुछ नई ऊंचाइयां छूती रही है और कई लोगों को एक ऐसे मुकाम, एक ऐसी प्रतिभा दिलाने में हासिल की है जिसके संस्थापक को अभी आपने सुना, मुदित पाठक जी को। तो अब मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा हमारे ही बीच एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व को, उनके कुछ उद्देश्यपूर्ण बातें सुनना चाहेंगे, तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा अजितेश्वर सर को कि वो आए और अपने कुछ विचार प्रकट करें, अपने कुछ तथ्य रखकर एकता के ऊपर कि कैसे एकता होनी चाहिए, कैसे देश एकता संपूर्ण हो सकता है। अजितेश्वर भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। अजितेश्वर शुक्ला, Yeah, I'm audible now. यू आर ऑडिबल अजितेश्वर भाई, बहुत बहुत स्वागत है ओके। अजितेश्वर भाई। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश में बोलो कि हिंदी में। जैसा आप चाहें, हमारा देश ओके। स्वतंत्र है और यहाँ पर स्वतंत्रता बोलने के ऊपर भी है, यूथ को भी स्वतंत्रता है। बहुत बहुत स्वागत है। या ओके, थैंक यू फॉर योर welcoming. So my name is Ajitesh Shukla, as many people know here. So regarding this National Unity Day, which we will be celebrating tomorrow, that will be 31st of October, but we are celebrating it now. So regarding this unity, for me, unity is something which is more important when we don't hesitate in talking, like we are sharing our feelings, not thinking in mind about that someone will be getting hurt, someone's like religion we are talking about. Because nowadays, if you see that Hindu, Muslim, these things, political things are like everywhere in the news, and I'm very much fed up. The Hathras case which went happened, then this love jihad angle. So these are some news which are like political things. I won't talk about them much, but I feel very bad and very depressed listening to these type of news which are happening. And UP is not far behind. UP is also like sometimes we see that it's not getting developed too much. So these are something. Apart from this, for me, unity is brotherhood. Like I'm talking to the person who is understanding me, who is not thinking that I am Shukla, I am Brahman, I am some of other religion. So this is something. And regarding this unity day, which we are celebrating, it is for the person's birth, Sardar Vallabhbhai Patel, and we can learn many things from him. It's not, and we have learned. It's not because for me he is the best idol. He joined 562 princely states together. What we are seeing today's map, India's map, is because of him, not because of someone. I'm not saying everyone is not good, but the thing is, with the help of Mahatma Gandhi's help and Sardar Vallabhbhai Patel, we are seeing what India is today. We are not, and now some people are trying to divide it with Hindu Muslim thing, which I feel bad. So these are something I can talk about for I can talk about this whole day, but it's not the case. We need to understand from our heart, from our mind, that people who are like for the politicians, we should not let them to dominate us. Because see, for me, leader is not someone who is controlling you, controlling the followers. Leaders are someone who is like who are for serving the people and the nation for the betterment of the world. And I joined Yogi Gang, and other purpose is to make our life and the others' life also a world a better place to live. So that's what I am more concerned. And Modi ji has done a very good job in 2014 when he only introduced with this National Unity Day, if someone don't know, in 2014 only. So this is something which we are trying to celebrate because it helps in our, sovereignty, unity, in हिंदी एकता, सम्मान और सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए.
तो हम लोगों को ये सब चीजें अपनी याद करनी चाहिए, कैसे हम लोगों को मिली है स्वतंत्रता, और इन सब चीजों का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। और आजकल किसी को कुछ बोरिंग लग रहा है, कि किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या सबको मिर्जापुर देखना है, तो ये सब चीजें एक अलग चीज है। बट हम लोगों को यूनिटी हमेशा याद रखनी चाहिए, कि हम लोग सब आपस में भाई भाई हैं, और किसी में लड़ाई भैर होती भी है तो एक दूसरे में सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। इसी वजह से 2012 में आपका, सॉरी 2012 में शायद आपकी वो बनी भी थी कॉलेज बिल्डिंग, जो बनी हुई है गुजरात में, वडोदरा में बात। तो यही सब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मुझे अभी, क्योंकि मैं इतना मैच्योर या बड़ा नहीं हूँ कि मैं इस पे पॉलिटिकल डिबेट करूंगा, बट मेरे लिए यूनिटी यही है कि हम सबको साथ में रहना चाहिए। और जैसे कि हम लोग एक साथ खड़े हुए थे जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी, अभी भी हम लोगों को हर चीजों से, चाहे वो कोरोना से लड़ाई हो, चाहे कोई भी डिबेट हो। आजकल देखते हैं कि बिहार का इलेक्शन चल रहा है तो कहीं और लड़ाई चल रही, कहीं कुछ चल रहा है। तो ये सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए हम लोगों को, और कुछ अच्छा करना चाहिए, कोशिश यही करते हैं। बाकी तो मैराथन्स होती हैं आपकी, रन फॉर यूनिटी चल रही है दिल्ली में, अभी होगी कल, और बहुत जगह होती है। तो ये सब चीजें हैं। तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू यू, विकास। बहुत बहुत धन्यवाद अजितेश्वर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बोला उसके ऊपर कुछ बोल पाना शायद ही मुश्किल होगा, पर मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा। ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान लिखेगा, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान लिखेगा, हमेशा एकता का गीत जवान लिखेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये दिन हम अगर मना पा रहे हैं एक जगह बैठकर, एक कोई दिन कोई दिवस हम मना पा रहे हैं, तो वो शहीदों के लिए है। शहीदों के लिए अनेकों अनेक पंक्तियां, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, चाहे हमारे कई और स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने कही है। अब कुछ पंक्तियों से मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ही टीम की एक बहुत अच्छी वक्ता को, सराहा जी को, कि वो आए और अपने वक्तव्य से यहाँ का मन हो। सराहा जी, आप अपना अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को और अपनी पेशकश दे सकती हैं, सराहा जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, सबका स्वागत हो। तो बेसिकली मेरा नाम आपने गलत लिया, इट्स सारा। ओके, ओके। तो या तो मैं जस्ट एक ही चीज बोलना चाहूंगी, यूनिटी हम बहुत सुन रहे हैं। सो ये पोएम मेरे भाई ने लिखा है इंडिया के लिए, जो वो न्यू विजन देखता है। तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, तब तक मैं मेरा कैमरा ऑफ करूंगी। The new India. Times have changed from old to new, but people have changed, only a few. Revolting against leaders elected by you, protesting with facts that not many knew. Proudly we call ourselves the Indian youth. We knew the future of our motherland too. Going for a strike, ignoring things we need to do. Our PM is fascist. We say it might or not be true. We live our lives as brother, not caring of our religion. I wish the same goes on, no matter what decision. Progressing in our lives hand in hand, not creating one more fission. A smiling country is what I want to see, the new India I envision. Thank you, guys. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़े शायर ने कुछ पंक्तियां कही है, अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, अब कहाँ मिलने मिलाने वाले रहते हैं। तो इसी पंक्तियों पर अब हम सबसे पहले जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब अपना कैमरा ऑन कर लें। इसके दो मुख्य कारण है, एक तो फोटो खींचेगी जिसका आज का यूथ युवा सबसे ज्यादा दीवाना है, पहला। और दूसरा, हम सब अब शपथ ग्रहण समारोह की ओर बढ़ रहे हैं। ज्यादा समय और बर्बाद ना करते हुए हम कुछ शपथ ग्रहण समारोह की, तो आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर लें। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन कर लें, सभी लोग।